CPT के कोचिंग में, IAS के कोचिंग में लगे हुए हैं कि साहब अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा. You don't find youth, you find old people in their 20s. So that's a very Shani Rahu kind of a world. And these people live, Indians are best trained to handle Shani Dashas. भाई गुलामी, गरीबी, लगे रहो, try again, work hard. I am absolutely against the concept of hard work. Okay. हमको गोरे सिखा गए साहब, work is worship, duty is God. It's attributed to Gandhi, but I think some British said it actually. अब वो क्यों सिखाए? Okay. Because India with all its bloodbath during the Mughal rule and all that was still a very dharmic country. Okay. So they realized कि ये लोग धर्म के नाम पे तो 57 का गदर कर देते हैं. Yeah? That happened on religious grounds. तो उन्होंने कहा भाई इनके धर्म को ही पंचर कर दो. So they came up with an idea, work is worship, duty is God. वो कील जैसे ठोक दिया. अब क्या होता है, अब जब ये गोरा साहब बोलता है ना फायर, तो one brown idiot shoots another brown idiot, क्योंकि work is worship, duty is God. तब जलियांवाला बाग होता. तब ये होता मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे मुल्क पे राज कर रहे हैं, और आज भी ब्यूरोक्रेसी और एलिट राज कर रहा है. ये बदला नहीं है, काले अंग्रेज आ गए बस पावर. सो शनि की जेल को तोड़ने वाला होता है केतु. और वो सारी जेलें, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो मानसिक गुलामी हो, चाहे वो शारीरिक गुलामी हो, केतु इज द लिबरेटर. People say Ketu is a tormentor. No, Ketu is a liberator. Okay, it's going to wake you up. You like it or not, he is going to wake you up. Okay? मेरा भी जो awakening हुआ था, that happened in Ketu. Okay? Mercury तक I was a very sharp corporate slave. I was very good at what I did, but I was sharp. You have one of the leading pages in a very short span of time that shows how sharp you are, even after Ketu has gone from your life. So there is no, you don't have to justify it. We know it. You are one of the most leading, sought after astrologers even today. Grace of God. I wouldn't take the credit for it. Okay? आपने 2018 में blog start किया था ना अपना? 16 में. 2018 में आपने वो आर्टिकल लिखा था केतु का. वो आर्टिकल केतु पे लिखा था. It went viral. It went viral. COVID, कोरोना वायरस. नीदरलैंड और चाइना तक से उसने मुझे क्लाइंट्स दिलवाए. So I have actually I have clients in 6 continents. Wow. Let me confess this to you. आपका जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना, I could resonate each and every word. I was so shocked. For a second, I was like, okay, am I talking to my own soul? Is it my own experience? And I was so impressed. आज तक, till the date, I keep looking at your blog every single day. कुछ तो नया आएगा यार, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा. I started getting interested in astrology, all thanks to you. Thank you so much. On behalf of every client that you have. Thank you. Keep writing. I will. Would you believe वो आर्टिकल मैंने 6 घंटे में लिख डाला था. Wow. With almost zero research. Wow. Experience तो था ना 7 जन्म के 10. नहीं. Experience first half का था. So Ketu doesn't work hard. Okay, यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है. या हार्ड वर्क चलेगा तुम्हारा शनि में, मरकरी में भी चल जाएगा, but Ketu never works hard. So one fine day I got up at around 4 in the morning. I got a flash of insight. By the grace of God, cut लिखा. 10:30 11 बजे तक it was a polished article, edited and uploaded. Wow. उसके बाद में Google loved it. Okay, and within like a few weeks it landed on the first page. और वो काफी बार ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 भी रहा केतु आर्टिकल में. शनि का आर्टिकल जब मैंने लिखा वो गूगल में बहुत पीछे है. बीच में इट वाज ऑन द फर्स्ट पेज, बट वो पीछे चला गया. इट टुक मी मंथ्स टू राइट एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. मंथ्स. केतु एफर्टलेसली. ओके, दैट्स द डिफरेंस. शनि कुछ भी देगा, पहले पसीना बहाओगे तो देगा. केतु का मूड में तो दे देगा. So Ketu is a saint. People say he is a malefic. No, he is the supreme benefic. People dread Ketu period because वो पुरानी जिंदगी आपकी धूल धूसरित कर देगा, particularly in a देसी इंडियन context. कि साहब मेरी नौकरी मेरी छोकरी. Okay,
my money and my relationship, that's all we bother about, right? कभी कभी my health. तो ये माय वाला है ना, वो आते ही छोड़ना शुरू करता कि हाँ भाई क्या क्या है तुम्हारे पास, किस किस बात का अभिमान है तुम्हें, किस बात पे छोड़ दो. ये है मनी गॉन, नौकरी गॉन, पावर गॉन, लड़की गॉन, रिलेशनशिप गॉन, इवन माँ बाप छुड़वा देता है डिपेंडिंग अपॉन द हाउस इट सिट्स इन. Yeah, यही हुआ है. I've lost my grandmother during the Ketu phase. My beloved grandmother. So केतु does that. केतु रिश्तों की बलि लेता है, नौकरियों की बलि लेता है. But Sir, let me face this. 60 साल का केतु, 60 जन्म का दर्द. नहीं, 60 जन्म का दर्द. नहीं, that's the wrong way of looking at it. Okay, 7 my साल का केतु, 7 कैंसर खत्म. wow, this is new. Yeah. 7 साल का केतु, 7 जेल की चाबी, 7 जेल तोड़ता हूँ. Right. Okay, because you know I have seen this thing almost n number of times. Okay, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में कैंसर है, केतु सब निकाल देता. Yes, yes. ये तो हुआ है. लेकिन वो ऑपरेट करता है बगैर एनेस्थीसिया के. केतु will take out everything that has become dead and toxic in your life. But once he is done with you, after 2 years, you say, Maharaj, thank you. That was the best thing that ever happened to me. Yeah. ये तो होता है. You are completely a different person once you walk out of that phase. Yeah. So केतु अगर अच्छे मूड में है तो जैन मुनि है, और बिदक गया तो नागा साधु अघोरी है. You know, there is this legend of Aghoris. If they slap you, they have blessed you. Okay? अगर गाली दी तो छोटा ब्लेसिंग है. If they beat you up, तुम्हारा लाइफ बन गया. Ketu is like that. Okay? So I have seen a few things, you know, people who are like in a very toxic relationship, boom, khatam kar dete. People who are in a bad marriage, khatam, divorce ho gaya. Ketu period is the best time for divorces. Okay, we'll come to the several phases of it. Yeah, sure. और सबसे बड़ी बात आपके, मैंने ये चीज देखी है, and this has been a little new to me, I'm still doing the research. केतु दशा में शनि का खाने का जेल तोड़ देता हूँ. Seriously. You are a slave to शनि का खाना. Okay. Yes. Around the age of 36, you realize कि बहुत से गड़बड़ है. You try to fight it out. केतु period often destroys that house in a way कि आप उससे कट जाते हो, आप वो गुलामी छोड़ देते हो. So it's a liberator, it's a saint. We are the so-called spiritual people. We don't know how to handle केतु. That's sad because deep down inside हमारी जड़ों में शनि बैठा हुआ. हम लालची, करप्ट, हिपोक्रिटिकल लोग हैं. This is not a Ketu society. Maybe India was a Ketu society 2000 years ago. अभी तो we are a very शनि society. गरीबी, भूख, नंग, superstition, ये सब फैला हुआ. And these days, a Rahu society, because we have become very materialistic. Am I clear? Yeah. These days, we have become so much like Rahu. We want everything which is, good looking, expensive, and we are very materialistic. We are chasing after illusions. तो केतु आके इलाज कर देता जो उसका, सारे वहम निकाल देता बंदे. Especially the egomania and self-importance that people have. It crushes totally. People with heavy shani, heavy sun, इनका तो वो बाजा बजता है ना. ये heavy shani people, yeah, same here. बजा है दोनों का. Yeah. So heavy shani people want to control everything, and heavy sun people are egomania. Okay. ऐसी कमर तोड़ता है ना कि लग पता जाता है. Because especially the first half. Okay. So we will go one by one. Okay. A lot depends कि केतु कहाँ बैठा है. The worst is the second house. जिंदगी खराब है, सेकंड हाउस केतु है. सेकंड हाउस केतु खानदानी फकीर है वो. If these guys try to save money, they can never ever save money. कुछ ना कुछ will go wrong. प्लस इनका फैमिली इनहेरिटेंस मैंने अक्सर देखा है शून्य होता है. अक्सर बाप दादे इनको कर्जे दे जाते, पैसे नहीं दे जाते. So second house, 8th house, 12th house, ये 3 खानों में बहुत दुखी करता है. 7th हाउस में ठीक रहता है, लेकिन 7th हाउस में शादी का भट्टा बिठा देता है. बट हम उस पर नहीं जाएंगे because that will take a very long time. We will quickly go through the phases of Ketu.
सो एक चीज देखो, केतु टिपिकली आता है वाटर चंद्रमा वालों की लाइफ में। Yes. कर्क चंद्रमा, वृश्चिक चंद्रमा, मीन चंद्रमा। ओके, सो ये क्या है, ये सेंटिमेंटल बीइंग्स होते हैं। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, पर्टिकुलरली कर्क राशि। And they tend to attach to things, to people. Okay. Meena Rashi still has it a little easier. Kark Rashi has the worst. Kark Rashi, भाई attachment बहुत होता है ना उनमें। They cling to things, they cling to relationships, they cling to families, they cling to boyfriends, girlfriends. टूटा गिलास, किसी कर्क राशि वाले की तलाशी ले लो, 20 साल पुराना सामान मिल जाए। Okay. कर्क राशि has it worst. Scorpio again has it bad, but not that bad. Meena Rashi has it relatively easy. But when you come to Lagna, Makar Lagna, Singh Lagna, Mesh Lagna और Roger, ये तीन को तो बुलडोजर के नीचे रखता हूँ, खास तौर पे मकर लग्न। Okay. Because the better your Shukra is, the worse your Ketu will be. और अगर केतु शुक्र इकट्ठा बैठे तो वो धूमधाम होती है आदमी की। So Ketu starts with a big bang. Okay, something drastic happens typically in the house of Ketu. Okay, something drastic happens which throws you off the track. Sudden job change, place change, घर का change, कोई झगड़ा, something will happen which will separate you. जैसे खेत छुड़ावे खेत, तो whatever you are doing, तुम्हारा खेत बदल देता है। वो कहते हैं ना मेरा फील्ड बदल गया, तो फील्ड आदमी का बदल जाता है केतु को। एंड सडनली वो मरकरी पीरियड में ये ना, ये ब्रेन वर्क्स एट अ टॉप गियर। एग्जैक्टली राइट सॉरी, है ना, वो बोलते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, दैट्स द मरकरी पीरियड। मरकरी में आदमी दहाड़ता है। लेकिन केतु आने पे समथिंग गोज रॉन्ग विद योर हेड। पहली चीज, केतु जिसकी बलि लेता है, दैट इज योर हेड, योर ब्रेन। they say Vinash Kale Viprit Buddhi. That is appropriate for Ketu, like properly appropriate. I could not understand the phase before Ketu, but एक बार Ketu गया ना, I could understand it in the right sense. Yeah, and मरकरी में क्या, आदमी थोड़ा एरोगेंट हो जाता है, उसको बाकी सारे लगते हैं नियंडरथाल से सयाना तो मैं ही हूँ। वो जब भी मरकरी जाता है ना, तो यू सफर फ्रॉम समथिंग विच मेसेज विद योर ब्रेन। इट कुड बी डायबिटीज, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, समथिंग। यहाँ पे पहला हमला करता है। बिकॉज व्हेन योर टाइम गोज रॉन्ग, द फर्स्ट थिंग यू लूज इज दिस। So you become a dumber version of yourself. Okay, you become a slower version of yourself. You become a confused version of yourself, and you become a lost person of yourself. Mercury period, if you look at people's eyes, they are very sharp and focused. Ketu period, they look like Babaji, तो उनके आंखें ऊपर चढ़ा होता है, and that's not voluntary. You can't do that. वो automatically होता है. That's Ketu messing with your head. You start to look like Ketu. Mercury people dress sharp, okay, not pretty but sharp. Ketu, they again dress like babas, you know, वो झोला टाइप कपड़ा पहन करके, एंड औरतें बाल बाल फैला लेती है, मर्द दाढ़ी आड़ी बढ़ा लेते हैं। You become the worst dressed person in your इलाका, okay, you are a holy mess. ये निशानियां है केतु की। Then you lose body consciousness. अभी कुछ खाया नहीं खाया, जो पहना उसी में पहना। कुर्ते पजामे में ऑफिस जाना शुरू कर देते लोग, चप्पल एक दूसरे पैर की पहन लेते हैं। ऑल दैट मेस हैपेंस। अनदर थिंग दैट हैपेंस इज आप रास्ता भूलने लगते हो। हुआ है अच्छा खासा। आप रास्ता भूल जाते हो, आपको पता गलत रास्ते पे जा रहे हो, स्टिल कीप ड्राइविंग। You know, I can talk till cows come home, but I don't want to spook people, but these things happen. Okay? That shows आपका दिमाग नहीं है, और वो किसी ऐसी चीज से काटता है आते ही, which is very dear to you. Okay? उसके बाद में शुरू होता है केतु वीनस, which I call the हेलोनस। तो मरकरी से तुम्हारा दिमाग धड़ाम होकर घुटनों में आ गया। पहले आदमी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था, अब चिड़िया सामने बैठ जाए ये नहीं पता लगता कि तोता है या कौवा। You lose that sense of perception. You know? पहले you could connect the dots, cut. That's Mercury.
केतु यार ये हो क्या रहा, एंड यू सडनली लूज इंटरेस्ट इन योर वर्क। क्या है यार, क्यों जाना, सडनली आपका छुट्टी का ग्राफ बढ़ने लगता है, यू स्टार्ट टू कॉल इन सिक, यू टेक सिक लीव, एनर्जी ड्रेन होने लग जाता है। One of the biggest reason of energy drain in Ketu is that Ketu is not a worker, Ketu is a sant. Sant काम नहीं करता. You know, saints live in an ashram. Ashram is a place where there is no shram. Yeah? Adar, another. Shram, ashram. So they are supposed to sit and read scriptures and meditate and things like that. Okay? So you start to resent your work somehow. आपका मन करता है वेले बैठ के सोचते रहो बस, है ना, you are lost in your foggy dreams. केतु वीनस में आदमी पे कहर टूटता है, पर्टिकुलरली फॉर मेल नेटिव। तौबा, इफ यू आर अ मेल नेटिव, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली मकर लग्न, मेष लग्न और सिंह लग्न, यू आर इन फॉर अ ब्रूटल राइड। You get tormented by women. Okay. If you are a male native, especially, even female native are tormented by women, but if you are a male native, particularly with one of these three lagna, कोई एक दो महिलाएं आएंगी जो आपकी जिंदगी में आग लगा के रख देंगी। Could be your wife, could be your colleague, could be your boss. I've seen people जिनको झूठे केसेस लगे हैं. I've seen people who have been humiliated by you know, their bosses or their clients. I've seen people जिनको कि उनकी बीवियों ने जेल करवाई है केतु वीनस में। सो केतु वीनस आते ही मैं कहता हूँ भैया सबसे पहले देवियों को नमस्कार करके भागो, पंगा मत लो। ओके। और केतु वीनस एक्ट्स लाइक अ हनी ट्रैप। ओके। केतु वीनस में आदमी को एक वो गाजर लटका देता है, ओके, कि कम एंड गेट दिस, कोई प्रमोशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट के कुछ, मत जाना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिकॉज द मोमेंट यू शो सम ग्रीड, केतु विल पुट यू इन एंड द टॉर्चर स्टार्ट्स। नेक्स्ट प्रमोशन, हिंदुस्तानियों को प्रमोशन का बड़ा शौक है, वो 10-15% एक्स्ट्रा तो दे देगा बट वो तेल निकालेगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया केतु में मेंटेन स्टेटस को, कोशिश करो डिमोशन हो जाए, प्रमोशन ना हो। The harder you work, the unluckier you get. केतु वीनस में तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छुट्टी पे चली जाती हैं, और वो 3-4 देवियां आती हैं जो पाइप लगा के खून पीती हैं। खड़ी गाड़ी को कोई टक्कर मार जाएगा, कैश का इनफ्लो खत्म हो जाएगा, बिल तुम्हारे रिजेक्ट हो जाएंगे, इंश्योरेंस वाला क्लेम रिजेक्ट कर देगा। सो इट इज सो ट्रेजिक दैट इट्स बॉर्डरलाइन फनी। मेरी खड़ी गाड़ी को ट्रक वाला फोड़ गया था, एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि बॉस आई एम नॉट रनिंग द यूनिवर्स। तो वो जो 18 साल की मरकरी की खुमारी होती है ना, कि मैं तो कुछ कर ही लूंगा, आई विल थिंक एंड टॉक माई वे आउट ऑफ एनीथिंग, ये तो सारी गर्मी निकाल देता। मरकरी में यू फील इनविंसिबल। मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ विक्ट्री। प्लैनेट ऑफ विक्ट्री इज मरकरी। सो मरकरी पीटने लगने देता आदमी को, यूजुअली अगर थोड़ा भी ठीक ठाक बैठा है। जो आदमी ने हार कभी जानी नहीं होती क्या होती है, केतु में वो जीत की शक्ल देखने तरस जाता। स्ट्रिंग ऑफ डिफीट, जहां हाथ डालो आग। सो केतु वीनस, आई वुडंट विश अपॉन माय एनिमीज। तौबा। So that is a period, everything that can go wrong will go wrong, and the kind of humiliations and tensions you face, मेरे जैसे आदमी को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। मेरी मूछे देख के कोई मानेगा नहीं, but that's true। ये तो करता है ये। बट ये जाते जाते आदमी में दो चेंजेस आते हैं। वन, ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज नॉट रनिंग एवरीथिंग, एंड सेकंड, he understands कि बहुत nothing is worth so much pain। और इसके साथ के साथ मैंने अक्सर देखा है केतु बीमारियां लाता है। केतु 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 वीनस में डायबिटीज उसका नंबर 1 फेवरेट है। अंत है ना, वो तुमको ज्यादा मिठाई दारू ये सब नहीं खाने देगा, कटिंग करेगा। बैठो बेटा, ठीक है, वो खाओ दाल। स्लीप एपनिया देता है कई बार, हेडेक, लेथार्जी,
पैनिक अटैक्स देता है, बिकॉज केतु ज्यादा एनर्जी कभी देगा ही नहीं. I Throughout- have something to ask. I have something to ask. Can I Sure. ask? Yeah, good. You mentioned this panic attacks, claustrophobic, being a claustrophobic and getting panic attacks is quite a normal in Ketu Mahadasha, right? So my question to you is, how do we manage these kind of thoughts which are very negative for our mind? Because panic attacks are very common in Ketu Mahadasha. I underwent Ketu Mahadasha at an age of 17, and till the date, whenever I recollect those moments, I get insane panic attacks. I have turned claustrophobic because of those incidents. So please tell our viewers, how do we manage these panic attacks? Okay. So rule number 1 with Ketu, don't try. Hmm. Don't try. The harder you try, the worse it gets. Okay. Hmm. And don't be greedy. Okay. हमने greed को एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया हुआ है ambition. What is ambition? It's greed in a corporate suit. Hmm. If you are greedy, केतु तुम्हारा बाजा बजा. Okay. अगर मैंने मेरा वो प्रमोशन नहीं लिया होता, I was a very happy man. I had a very strong support structure. I had a lot of friends in the workplace. वो सब छोड़ छाड़ के मुझे उस खूंखार बस्ती में भेजा जिसको दिल्ली एनसीआर बोलते हैं. वो कहते हैं ना, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के भागे हैं. That is what happened. So Delhi and Dubai are torture chambers of Ketu. Hmm. If you don't live in these places and somebody invites you to take up a career, say a blunt no. A promotion कभी नहीं लेना Ketu period. Okay. Second thing, I'll talk about the remedies and how to embrace it in the end. But there are two things. Okay. One, nature heals you. Okay. Hmm. क्लस्ट्रोफोबिया क्यों है? अरे वो सन्यासी, उसको बीहड़ में घूमना है. Hmm. My favorite places were abundant temples during Ketu Dasha. Hmm. ऐसा वाला टेम्पल नहीं जिसमें भीड़ भड़का हो, ऐसा वाला जिसमें कोई आता नहीं. Hmm. I would go and sit and just do nothing. That was very healing. Hmm. Okay, abundant छोटे छोटे temples. Hmm. That's where you go. You go and sit under trees. महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था बेटा जी? पेड़ के नीचे. पेड़ के नीचे. So you start to commune with nature. Hmm. So going near a river, going sitting under a tree, spending time with cows, ये सब करो. आप अपनी लाइफ में आश्रम बना लो, तब तो you'll be happy. कॉर्पोरेट कमरों में बैठ के तुम्हारी सिर्फ ठुकाई होगी. There is a reason they call it the board room. उसका स्पेलिंग गलत है. BOARD बोलते हैं, it should be BORED. Indeed, indeed. So, Yeah. sir, एक और चीज मैंने नोटिस की है, when you are in Ketu Mahadasha, Ketu Antardasha, there is a feeling of numbness that Yes. comes into the system, and that numbness slowly turns into lethargy. Lethargy के बाद धीरे 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 panic attacks आते हैं. So there is a particular pattern that a native gets into. So, if somebody is about to get into Ketu Mahadasha, what would your advice would be to manage this numbness? Don't work hard. Hmm. हमने वो हार्ड वर्क करके वो अंग्रेजों का डाला हुआ गंद, उन्होंने उनको गुलाम चाहिए था. आज गुलामों की फौज तैयार है. 150 करोड़ गुलाम है, 1000-2000 मालिक है. ओके. रूल नंबर 1, नेवर वर्क हार्ड. आई ट्राइड वेरी हार्ड, आई सक्ड. ओके. लाइक आई सेड, वो केतु वाला आर्टिकल सुबह 4 बजे मूड हुआ, लिख डाला, एंड समथिंग रोट थ्रू मी. आई डिडंट राइट दैट. Okay, nature talks to you. Nature takes care of you if you surrender in Ketu. Shani, you have to fend for yourself. Ketu mein, if you do not try, okay, whenever given a choice, take the smaller role. Take केतु में तुम्हारा नंबर 1 कंपास डिसीजन मेकिंग के लिए होना चाहिए पीस ऑफ माइंड. वो हाई प्रेशर, हाई विजिबिलिटी रोल, हाई एक्सपोजर वाले, you should go for something which is sweet, small, content one. हमने वो सारे गुलाम बना रखे, सारे ज़ॉम्बीज को अगला प्रमोशन चाहिए, राइट? तो वो प्रमोशन तो मिल जाता, उसके साथ में जो कांटों का ताज आता है ना,
वो बाजा बजा देता है, एंड व्हेन यू कांट कंट्रोल इट यू पैनिक। सेकंड थिंग, वो बुद्ध जब ही जाता है तो आपका दिमाग स्लो डाउन हो जाता है, वो चौथे गियर से पहले गियर में गाड़ी चली जाती है, तो यू फील नंबनेस। So my advice is take plenty of time out and take plenty of sleep and rest. And if you start doing some sort of a worship or a spiritual practice, heartfulness meditation is great for you. Okay. So do not seek promotion, money, love, family, power. No, seek peace of mind. You won't go wrong with it. Yeah? हम peace of mind छोड़ के हर चीज के पीछे भागते हैं। तो केतु में रूल नंबर 1, जहां पीस मिले उधर जाने का। सेकंड थिंग, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। सेकंड पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत कुछ जाएगा। इफ यू ट्राई एंड क्लिंग टू अ रिलेशनशिप, इट विल बिकम मोर एंड मोर टॉक्सिक टिल द टाइम यू टैप आउट। इफ यू ट्राई एंड क्लिंग टू अ जॉब, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। आई वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल फ्रॉम माई शॉप फ्लोर अंडर द थ्रेट ऑफ अ हार्ट अटैक, ऑलमोस्ट एट अ हार्ट अटैक। और फिर वहां पे वो उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में डाला, वो मेडिसिन weren't वर्किंग, तो उन्होंने ड्रिप लगाया, एंड दे सेड कि अगर ये भी नहीं हुआ तो आपको अटैक आ सकता है, हम आपको एडमिट करेंगे। तो वहां की खिड़की से हमारा ऑफिस बहुत अक्रॉस द ब्रिज, तो मैं देख के सोच रहा था यार, नो जॉब इज वर्थ अ हार्ट अटैक। तो दैट वाज द एंड ऑफ माय कॉर्पोरेट करियर। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सर, जिंदगी में 2 चीजें हमेशा के लिए तैयार रहो केतु में, राजकुमार बन के घूमो, इस्तीफा जेब में रख के घूमो, और दूसरा ब्रेकअप करने को सदैव तैयार रहो। सर एक बात नोटिस की है, कैन आई प्लीज टॉक? या केतु में either you abandon the relationship or you are abandoned, दोनों में से एक, either you leave somebody or somebody leaves you। भाई, तो वो क्लिंगी तो नहीं करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये कर्क राशि वालों के साथ होती है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो इतने जूते मारेगा तुम कितना लड़ लो। सो इसके बाद में एक खूबसूरत फेज शुरू होता है केतु सन। ओके, दैट इज व्हेन यू फाइनली टैप आउट एंड द टॉर्चर इंटेंसिटी रिड्यूसेस। ओके, केतु सन में आपकी इतनी बच चुकी होती है केतु वीनस के अंत तक कि योर सोल रेबल्स की भाड़ में जाओ, अब नहीं चाहिए। आई ब्लॉक माई वाइस प्रेसिडेंट्स नंबर, तो she would call and she would yell, I would have panic attack. One day I got up, मेरा केतु सन शुरू हुआ ही था, मैंने उसका नंबर उठा के ब्लॉक कर दिया। I got a call from my senior, बोले यार तूने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा I am not talking to her, मुझे कंपनी से निकाल दो, ट्रक के आगे धक्का दे दो, उल्टा लटका दो, जेल करा दो, फांसी चढ़ा दो, इसका फोन तो नहीं उठाऊंगा। बोले भाई तू तो पक्का बागी हो गया। मैंने कहा यार पैनिक अटैक्स आते हैं मुझे मेरे बच्चों के सामने, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। एंड दैट नहीं चाहिए नौकरी वॉज अ लिबरेटिंग मोमेंट। नहीं चाहिए नौकरी वॉज अ वेरी लिबरेटिंग मोमेंट। समझ रहे हो? दैट वॉज ब्लेसिंग ऑफ केतु। उससे पहले आई आइडेंटिफाइड विद माई करियर वेरी स्ट्रांगली, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू से टू हेल विद इट, एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर लिबरेशन। कि केतु सन में एक दिन ऐसा आता है जब आपकी ईगो ऐसे क्रम्बल होती है कि यू फील कि या तो मैं पागल हूं या ये कोई अल्टरनेट यूनिवर्स है, मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता। और जो लोग कभी आपके नाम से थर्राते थे वो आपको धमकी देने लगते हैं। हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। तो दैट्स कार्मिक कमबैक। वो इंस्टेंट कर्मा टाइप होता है, जिसको तुमने 5 साल पहले कुत्ते जैसे अड़काया होगा, वो पलट के आएगा केतु सन में तुम पे भौंकेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो केतु सन इज ह्यूमिलिएटिंग बट लिबरेटिंग। So once you are liberated, then you understand कि भाई ये नौकरी है, ये भी जाएगी, आज जो ऊपर है कल नीचे आएगा, मैं ऊपर था आज नीचे हूं, फिर हो जाएगा। And then Ketu comes in like full blast. Ketu sun is when Ketu actually takes you over, when you surrender, when you tap out. क्योंकि केतु क्या है ना, लिटरली सन की सारी गर्मी निकाल देता है। And I have a first house sun, I know this. So I had become a little humble. केतु में सर थोड़ा ओवरलोड हो गए होंगे। अरे पूरा एक्सेल शीट था। देन कम्स केतु मून, ये शांति का पीरियड होता है। यू नो, केतु डजंट हेट द मून, केतु हेट्स द सन, राहु हेट्स द मून। केतु इज नॉट इनमिकल टुवर्ड्स मून, ही इज काइंड टुवर्ड्स मून। तो थोड़ा सा एंग्जाइटी देता बट नथिंग मच। तो मैंने देखा है इट्स अ
breath of peace. आदमी को डंडा नहीं पड़ता मून में ज्यादा. I was very worried कि मेरा तो कर्क चंद्रमा पता नहीं क्या होगा. But for a few months, all that anxiety and everything it subsides. हाँ, ये जाते जाते थोड़ा एंग्जाइटी देता है मून. कुछ ना कुछ फिर से डंडा आता है उसके लास्ट लेग्स में, जब आपका मून पैनिक करना शुरू करता है. सो वंस अगेन यू गो इनटू दैट पैनिक मोड जो कभी वीनस में होता था. बट इट्स नॉट इवन हाफ दैट बैड. फिर सो केतु मून, आई हैव ऑफन सीन पीपल लिव अ लिटिल अलूफ बट एट पीस. वो कुछ ऐसा कर देता, आपको काट देता, सबसे अकेला कर देता फॉर सम रीजन. किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी की बीवी मायके चली जाएगी, समथिंग वुड हैपन. Another thing what I've seen, Ketu sun, you have trouble with your father. Ketu moon, you can have trouble with your mother. Mother, yeah. Okay. Ketu Venus, तो देवियां, पत्नियां, गर्लफ्रेंड्स. Okay. But Ketu moon is a decent phase. Okay. आदमी को थोड़ी, पंजाबी में हमारे कहते हैं सुख दी साई, मतलब चैन के साथ आए. उसके बाद केतु मंगल इज द फनीएस्ट पीरियड. ओके, फनीएस्ट, क्योंकि यहाँ पे केतु अपने उग्र अवतार में आता है. केतु एंड मार्स दे लाइक ईच अदर. दैट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. मंगल राहु खूब मिल जाएंगे तुमको, मंगल केतु बहुत कम मिलेंगे. कभी देख लेना, मंगल राहु बरबर के, मंगल केतु बहुत रेयर है. बिकॉज मंगल केतु टुगेदर दे बिकम धर्म योद्धा. केतु मून में यू ट्राई टू मेंटेन पीस. बड़े टाइम बाद थोड़ी शांति मिली है यार, चलने दो, पीस एट एनी कॉस्ट है, ठीक है जान. केतु मंगल विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली दिस टाइम फ्रॉम मेल. कोई मेल कोलीग, मेल बॉसेस, कोई ना कोई. बट दिस टाइम यू आर लाइक बैटल रेडी कि आजा लड़ ले. ओके, this time you know this is not the ego which is on the line. This time you know कि अब मैं नहीं लड़ा तो ये मुझे खा जाएंगे. You don't fight out of ego or pride, you fight out of necessity. और तब आदमी का जो है ना, यहाँ पे खून चढ़ता बिल्कुल केतु मार्स. बोथ आर वॉरियर प्लैनेट्स. केतु अच्छे मूड में है तो जैन मुनि, अब बिदक गया तो नागा साधु है, और मंगल तो है वॉरियर. सो आदमी के पास खून सवार होता. During Ketu Mahadasha, we all turn into Kabir Singh. Yeah. Ketu Mars, you turn into Kabir Singh. Yeah. So Ketu Mars, you go down in a blaze of glory. You won't win in the end. Okay? You won't win in the end. But you will fight till the bloody bitter end. You won't take shit in Ketu Mars. So Ketu Mangal is a blaze of glory. लेकिन इसके बाद आता है केतु राहु. I think I am entitled. I have earned this. Okay. So let me speak, please. This is my favorite space. Okay. Ketu Mahadasha, Rahu Antardasha. This is a particular period जहाँ पे इंसान का जो ambition है ना, it will rise to a new high. I don't know. इंसान के हाथ कट चुके हैं, पैर कट चुके हैं. He has only one eye left. But he wants to rise high in life, not just high, the highest. उसके दिमाग में जो comparison चलेगा ना, that is inhuman. I mean, मुझे कुछ भी याद दिला दो, but not that face. That's like the darkest phase in the history of my life. I'm sorry, it just got me. So ये hangover होता है केतु मंगल का. When you go down in the blaze of glory, एक मिनट के लिए सोचो वो कहाँ होगा mentally, कितना aggression में होगा. So there is this very Ketu Mangal dialogue which I love. You know, एक वो थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. उसमें एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है. एंड सैल्यूट टू दोस पीपल हु डाइड फॉर द नेशन. पंच लाइन उसकी बहुत स्ट्रांग थी. कहता, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में. दैट्स द केतु राहु फेज. केतु मार्स का हैंगओवर, तो केतु राहु का स्टार्ट. आप खून की होली खेलने तैयार है, बट इट ब्रेक्स यू डाउन. सारी हेकड़ी, सारी गर्मी निकाल देते हैं राहु बाबा. रीजन बीइंग बच्चे, दीज टू आर अपोजिंग एनर्जीज. केतु कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, राहु को पूरी दुनिया चाहिए. दैट्स राहु, उसको दुनिया चाहिए.
और केतु को चाहिए कुछ नहीं, वो तो मलंग है। सो इमेजिन टू ग्रेट एनर्जीज आपको दो तरफ खींच रहा है और दिमाग तुम्हारे से। आई हैव सीन पीपल हैव हॉरिबल मूड स्विंग्स, हॉरिबल टाइमिंग्स। पर्टिकुलरली इसमें 2 महीने का पीरियड आता है केतु में राहु में शनि। आदमी को आदमी को नानी दादी चाची मौसी सब याद आ जाती, जहां हाथ लगाओ वहां से आग निकलती है। खड़े खड़े बाथरूम में लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, चोटें लगती हैं, लोग पैसा खा जाते हैं, गलत चीजें आ जाती हैं, गाड़ियां भिड़ जाती हैं। सो इस पीरियड में मैं कहता हूं भैया शंकर जी की शरण में जाओ, रुद्राभिषेक कराओ, इनका पाठ करो, यंत्र रखो, ज्यादा उठापटक मत करो। ठीक है सर, इस पीरियड में मैंने जब कोई है, जैसे अब मेरा जो केस था ना, केतु महादशा राहु अंतरदशा में, जैसे आपने बताया जहां हाथ डालो आग लगेगी। दिस इज अ पीरियड वेयर वी कैन नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प, वी आर बेसिकली स्क्रूड अप टू द कोर, फ्री विल इज एट द लीस्ट और से नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन पता है इसकी एक अच्छी बात क्या है, केतु राहु आर पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी, राइट? यू नो द लेजेंड कि वो सर भानु का सर कटा, सर राहु बन गया, केतु धड़ बन गया। दे कैन नेवर कम टुगेदर इन द चार्ट एंड थैंक गॉड फॉर दैट, वरना वो खाना तो लाइफ ही खत्म कर देता आपकी। बट when these two run together in your life, okay, it is a destructive come constructive phase, it's creative destruction, okay? पुरानी लाइफ खत्म, नई लाइफ चालू। तो जो तुम्हारा 2.0 निकलेगा वो केतु राहु के बाद निकलेगा। फ्रॉम द एशेज ऑफ केतु राहु अ न्यू यू विल राइज। यस, ये तो है। People change their jobs, they change their places, they change everything, but केतु राहु is drastic। वो पहले तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी मिट्टी कूट देगा बिल्कुल, बट उसके बाद यू विल राइज लाइक अ फिनिक्स। तो केतु राहु तो मैंने जिसका देखा उसकी चीखें निकल गई रो रो के। केतु शुक्र सम पीपल, केतु राहु एवरीबडी, नो एक्सेप्शन एवर, सबकी लगाता है अच्छी खासी। दानव एक फॉर्म में आया ना, वन बॉडी फॉर्म्स इन वन बॉडी। सो ये मैं कहता हूँ ये ट्रेन एक्सीडेंट है, ट्रेन पटरी से उतरी, अब कहाँ जाएगी किसी का बाप नहीं बता सकता। द ग्रेट ट्रेन ट्रैक, बट वो जहां जा करके रुकेगी दैट विल बी द डोर ऑफ अ न्यू डेस्टिनी। मुझे और केतु राहु डे 1 आई वाज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, डे 2 आई वाज अ बेरोजगार, then I was a writer, then I was a trainer, and finally I ended up an astrologer. केतु राहु के साथ केतु का जहर खत्म हो जाता है, वो डंडा परेड आदमी की खत्म हो जाती है। ऑफ कोर्स केतु प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन वो डंडा परेड खत्म हो जाती है। और इस टाइम तक जो तुम्हारे लाते पड़नी होती पड़ चुकी होती, मोर और लेस। विडोड होना है तो हो जाएगा, नौकरी छूटनी है हो जाएगी, कोई बीमारी होनी हो जाएगी, यहाँ तक मेजर डैमेज कर देता। देखो केतु को भगवान शंकर ने सांप का सिर दिया था, तो जहर और दंश इज इन द फर्स्ट हाफ। कोई को कहते हैं सेकंड हाफ बुरा होता है, मैं आई डिसएग्री। केतु शनि इज टफ, बट केतु मरकरी इज डिसेंट, केतु गुरु इज ब्यूटीफुल। I found my mentor, मेरा जो सही गुरु है। Everybody does. केतु गुरु में, so केतु loves guru, like sun loves Rahu, केतु loves guru. Okay. Guru is his role model, mentor and ustad. So he hates the Rakshas guru. शुक्र की तो बजा डालता, but देव गुरु is his guru. Okay. So out of respect for Jupiter, केतु अपनी जो बैंड बजा रहा होता है रुक जाता है, ठीक है गुरुदेव आ जाए, चल तेरे को छोड़ दे वो। I think So that guru can be a temporary guru, a permanent guru, okay, a niyat guru, anything. और वो आके 2 दिन में आपकी लाइफ बदल सकता है। I met my spiritual guide in Ketu Guru, okay, by the end of Ketu Rahu. And Ketu Guru में I wrote that article on Ketu Mahadasha. One fine day I got up, और फिर गूगल बाबा की मेहरबानी से still remember reading that article of yours, you can edit it in the end. The paradox of Ketu. It was called as embracing Ketu. yes. So there was this particular thing that you had written, and it made a lot of sense.
are in the path of spirituality, Ketu will take care of every single material need that you have. That is the paradoxical, most complicated part that nobody understands. We Yeah. are, yeah. That is why I said don't try. The Like harder you work, the unluckier you get. I did a 12-hour shift with a broken bone. हाई मेरी नौकरी, मकर लगना, right? But चली गई. when you are in the Ketu phase and you get, the relationship breaks up and you are like completely broken, you don't get into Vashikaran. Maybe Rahu phase mein hota hai wo. When you're in Rahu Mahadasha, you are chasing up to something. But when you're in the Ketu Mahadasha and you have a relationship breakup, you're like completely in that phase की चला गया भार में. अब कुछ नहीं चाहिए. Yeah. मोक्ष प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई, प्राप्ति हो गई, अब बस हो गया. Done. वही जो जाता है जान दो, जो आता है आन दो. Okay, you just chase peace of mind, and whenever you try to get greedy, Ketu will put you in your place once again. अब केतु जुपिटर में लोग क्या है, पूजा पाठ मेडिटेशन बहुत करते हैं. I would pray for 3 hours a day. And I'll feel happy for no reason. That's the best kind of happiness. सिर में दर्द है, डायबिटीज है, स्लीप apnea, but I was happy. That is the best thing that can happen to a human being, when you are happy for no reason against the odds. So I was getting so much blessing. Ketu, Jupiter, you put on a lot of weight. हुआ है. Huh? Because one, you are very happy, ऊपर से ग्रेस आ रहा है, and केतु जुपिटर तुम्हारा 2.0 चलता है, जो केतु के साथ थोड़ा तारतम्य में होता है. Okay? तो तुम्हें सपने अभी वैसे आने लगते हैं. You see your East everywhere and things like that. So that's how it happens. So Ketu Jupiter is the happiest phase in a Ketu Dasha, which is otherwise grim. इसमें थोड़ा weight gain होता है, but बाकी it's a happy time. And Ketu gives you without asking. मांगो मत, सब मिल जाए. मैं वही कहता हूँ कि केतु दशा ऐसे है कि घर पे एक सन्यासी आया है, सच्चा सन्यासी, सरकारी सन्यासी, और वो आकर के कहता है कि भाई मेरे साथ बैठो, भजन चिंतन मनन करो. आप कहोगे कि महाराज अब मेरी तो नौकरी है, मुझे तो जाना है. वो कहेगा ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना तेरी नौकरी रहे ना तू जाए. बट इफ यू से कि महाराज आई विल वेरी हैप्पीली डू इट एंड आई एम विलिंग टू डू इट, घर चलाना, वो इतना आशीर्वाद देगा, तुम्हारी रोजी रोटी मस्त चल जाएगी. Ketu, if you don't try, life is good. So much fun in Ketu second half. Once I realized this code, once I cracked this code, कि greed नहीं करना, effort नहीं करना, बाकी अपने आप होता रहता है. केतु शनि फिर आदमी को जो brings you back to reality. तो जो केतु गुरु में आप हवा में उड़ गए थे ना, केतु शनि brings you back to reality कि भैया बहुत हो गया, वापस आ जाओ. शनि महाराज इज अ हेवी प्लैनेट, रियलिटी का प्लैनेट. केतु में तुम्हारा रियलिटी से सेंस टूट जाता है, केतु वीनस. उसके बाद यू लिव वेरी सररियल लाइफ. अगर एक वर्ड केतु महादशा के लिए यूज करना, दैट्स सररियल. वो समझ में नहीं लगता अल्टरनेट यूनिवर्स. एग्जैक्टली यू स्टार्ट टू रियलाइज कि ऐसे भी हो सकता है. So Ketu Shani brings reality back. केतु जुपिटर में आपके पास में कल खाने को नहीं हो, you will still be happy.